Good morning, class. Today we are going to start something new called Math Basics. Okay, think of it as a part under Maths. Maths का एक हिस्सा है ये. Okay, where we will learn about different maths concept which are important and will always be required in life. ठीक है, ऐसे मैथ्स कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो आपको लाइफ में हमेशा ज़रूरत होगा. ठीक है, बी इट इन क्लास 7 और इन ग्रेड 10 और इवन इन कॉलेज और हायर स्टडीज़ के लिए भी. ठीक है, क्लास 7 हो, क्लास 10 हो या फिर अपने हायर स्टडीज़ के लिए हो, हर जगह ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे ना, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, हमेशा काम आएंगे. ऑलराइट, वॉच एंड अंडरस्टैंड टुडेज वीडियो वेरी केयरफुली बिकॉज विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दीज टॉपिक्स इन द अपकमिंग वीक्स. ठीक है, आज का वीडियो और मैथ्स बेसिक के अंदर जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं उनको ढंग से देखना, समझना, बिकॉज इसके बाद इसके ऊपर हम बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं. ओके, आई एम श्योर यू रेडी विथ योर मैथ्स नोटबुक. इफ़ यू आर नॉट रेडी, प्लीज़ टेक देम आउट. ओके, एज फास्ट एज यू कैन एंड विल स्टार्ट टुडेज लेसन. नोटबुक निकाल लो आप जल्दी से एंड आज का लेसन शुरू करते हैं. राइट, द ऑब्जेक्टिव फॉर टुडे इज विल बी एबल टू यूज बॉडमास रूल in solving mathematical expression. ओके, हम आज बॉडमास रूल के बारे में पढ़ेंगे और उसका यूज़ करके हम मैथ्स के एक्सप्रेशन सॉल्व करने वाले हैं. नाउ व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? राइट, सो आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. So what you see over here, 6 plus 7 plus 8, this is called a mathematical expression. A mathematical expression is a math problem where there are several operations. एक ऐसा मैथ्स का प्रॉब्लम जहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं. ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, नाउ एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी हैव अ प्लस साइन which means addition and we have a into sign which means multiplication. Okay, so this whole thing is called as a mathematical expression. All right, first let's try solving this easy maths expression. Okay, the question asks evaluate the mathematical expression. Evaluate means you have to find the answer of this mathematical expression. Okay, this is a very easy question. Okay, so pause the video, take 1 minute to find the answer to this mathematical expression. Let's come back. So if you have done your calculations properly, okay, some of you will get 104 as the answer and some of you will get 62 as the answer. Okay, those who have gotten 104 as the answer, what you have done is you have first done addition, 6 plus 7, so you will get 13. Then you do multiplication with 8, so 13 into 8 we get as 104. Okay, the other students must have done multiplication first, so you have done 7 into 8 first and we get 56. Okay, then we add this 56 to the 6 which is left, so 56 plus 6 we get as 62 answer. Now as you can see we are getting two answers for the same question. Question same है, expression same है, लेकिन हम लोग को दो अलग अलग आंसर मिल रहा है. Now in both the method the calculation is correct, but one of this method is correct and one of this method is wrong. Okay, how do we find out which method is correct and which method is wrong? So for that we are using the BODMAS rule. ठीक है, इसमें से कौन सा मेथड सही है, कौन सा गलत है, उसको देखेंगे कैसे, BODMAS रूल को हम पढ़ के. ओके, सो व्हाट इज द BODMAS रूल? द रूल और ऑर्डर that we use to simplify expressions in math is called BODMAS rule. ठीक है, in mathematical expression we have different operations. ओके, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए जो रूल यूज़ करते हैं, ओके, दैट रूल इज कॉल्ड एज अ बॉडमास रूल. ठीक है, जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं तो जो रूल फॉलो करते हैं उस रूल को बोलते हैं बॉडमास रूल. ठीक है, नाउ बॉडमास हैज़ अ फुल फॉर्म. बॉडमास का एक फुल फॉर्म है. लेट्स सी व्हाट डज दिस मीन.
Now as you can see in the diagram, we have broken down what does BODMAS means. B stands for bracket. Okay, so as you can see here are different type of bracket. We have simple bracket, we have square bracket, we have curly bracket. तो ये सब brackets के type रहते हैं. Okay, O stands for order. Okay, what is order? So we have studied about exponents. Exponents के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था. And we'll study another thing called roots in the next chapter. इन दोनों चीज़ को बोलते हैं हम order. Okay, the third is division. Division we already know. Then we have multiplication, then we have addition, and then we have subtraction. So BODMAS means bracket, order, division, multiplication, addition and subtraction. Okay, so you have to remember this clearly. BODMAS का full form क्या है? Bracket, order, division, multiplication, addition and subtraction. Okay, now let's understand what is the rule. BODMAS का एक एक लेटर क्या मीन करता है ये हमने समझ लिया, लेकिन अभी रूल को समझते हैं. ओके, सो एज यू कैन सी आई हैव गिवन ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल इन बिटवीन. आई हैव गिवन दिस बिकॉज दिस टेल्स कि वेन एवर यू हैव एन एक्सप्रेशन, आपके पास जब भी एक एक्सप्रेशन है, व्हिच ऑपरेशन टू डू फर्स्ट, आप कौन सा ऑपरेशन पहले करोगे, ये रूल हमें बताता है. Okay, let's understand what is the order of operations. So whenever you have any expression, any question, okay, if there are several operations, बहुत सारे operations उसमें हैं, then you have to remember the first thing you have to do is bracket. Bracket अगर आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन में, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको आप पहले सॉल्व करोगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसको हम हमेशा पहले सॉल्व करेंगे. Okay, then we have order. Order means exponents और roots. अगर ये है questions में, then bracket के बाद इसको हम पहले solve करेंगे. Okay, then we have division and multiplication. Now as you can see, division and multiplication are on the same level. इनका importance same है. So how do you decide which to do first? अगर एक question में division भी है और multiplication भी है, तो आप कैसे decide करोगे कौन सा पहले करना है? Okay, so here you have an important note. देखो, if there are both division and multiplication in the expression, अगर expression में division भी है, multiplication भी है, okay, so start solving from left to right, whichever operation come first, do it first. तो अगर एक प्रॉब्लम में डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, आप लेफ्ट से शुरू करो प्रॉब्लम को सॉल्व करना. जो पहले आ रहा है उसको आप पहले करोगे. अगर डिवीजन का साइन पहले आ रहा है मल्टीप्लिकेशन से, उसको पहले करोगे. अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन पहले आ रहा है तो उसको पहले करोगे. एंड एट लास्ट वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर ऑल्सो सेम लेवल, बट वो हमेशा लास्ट में आते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन वो दोनों सेम लेवल पे है. सेम लेवल मीनिंग दैट इफ देयर इज बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन द एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन में एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो वी स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. whichever operation comes first, do it first. ठीक है, एक क्वेश्चन में अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है साथ में दिया हुआ, आप लेफ्ट से सॉल्व करना शुरू करो. जो पहले आता है उसको आप पहले सॉल्व करोगे. ओके, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज द ऑर्डर. सबसे पहले यू विल डू ब्रैकेट, देन यू विल डू द ऑर्डर्स, दैट मीन्स एक्सपोनेंट एंड स्क्वायर रूट. ओके, देन विल डू ईदर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन. ओके, जो पहले आएगा उसको करेंगे. Then at last we'll do addition and subtraction. Let's understand this in the question. So this is the problem 1. ये वही same question है जो हमने पहले solve किया था, and we have taken the BODMAS sign over here. Okay. First thing first, what you have to do is you have to understand which operations are there in this problem. इस problem में कौन कौन से operations हैं ये आपको पहले पता करना है और BODMAS rule में आपको डालना है. Okay, so here we have plus sign, okay, and we have a multiplication sign. Okay, so if you see in the BODMAS, we have addition and we have multiplication. We know that multiplication हम हमेशा addition से पहले करेंगे. ठीक है, m a से पहले आता है तो मल्टीप्लिकेशन हम कब करेंगे, पहले करेंगे. ओके, सो योर आंसर
should look like this. The first operation we'll be doing is multiplication. So we'll take the expression 6 plus 7 plus 8 and we'll do multiplication first. तो 7 into 8 हमें पहले करना पड़ेगा. We get the answer as 56. Now we can do addition. So 56 plus 6, the answer will be 62. So all of you who got the answer as 104, your answer is wrong, because आपने पहले एडिशन किया फिर मल्टीप्लिकेशन किया, जबकि हमें क्या पहले करना है, पहले हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, फिर हमें एडिशन करना है. Okay, so here you have to remember the BODMAS rule. Okay, let's see a few more questions in BODMAS rule. Okay, here in this question we have inside bracket 25 plus 11 and outside bracket into 2. So we know we have to solve whatever is inside bracket first. Bracket के अंदर पहले जो भी है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो, ब्रैकेट के अंदर अगर है तो उसको पहले हम सॉल्व करेंगे. So first we have a bracket and outside the bracket we have a multiplication. ठीक है, so the first step is we'll do inside the bracket. तो inside the bracket we have 25 plus 11. 25 plus 11 कितना बनता है? If you do the addition you get 36. Now ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट को हम हटा देते हैं. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर अगर एक बार सॉल्व हो गया अपना जो भी सम है, ठीक है, तो ब्रैकेट हम हटा देते हैं. सो व्हाट इज लेफ्ट? 36 into 2. नाउ सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है एंड योर आंसर इज 72. लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 3. सो हियर you have 10 to the power 2 minus 16 divided by 8. We know 10 to the power 2 is a exponent. ठीक है, exponent मतलब order, तो O एक अपने पास आ गया. Okay, then we have a subtraction sign, तो subtraction अपने पास आ गया. Okay, then we have division sign, तो division एक अपने पास आ गया. सो एज यू कैन सी BODMAS में क्लियर है. पहले हम क्या करेंगे? पहले करेंगे हम ऑर्डर, फिर डिवीजन और लास्ट में करेंगे सब्ट्रैक्शन. ओके, द फर्स्ट थिंग वी आर डूइंग इज ऑर्डर. सो ऑर्डर मीन्स दिस क्वेश्चन. सो 10 to the power 2. सो वी नो 10 to the power 2 means 10 is multiplied by 10 2 times. सो 10 into 10. सो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा? 100. नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना है. ठीक है, सो विल नॉट डू सब्ट्रैक्शन फर्स्ट, बिकॉज सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में आता है. हम पहले क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप होगा अपना डिवीजन. तो BODMAS में एक बार आपने क्लियर कर लिया ना किसको पहले करना है किसको बाद में करना है, तो आपको कन्फ्यूजन ही नहीं होने वाला है. ठीक है, सो सेकेंड इज डिवीजन. सो विल डू 16 डिवाइडेड बाई 8. So what is 16 divided by 8? So 8 2s are 16. Okay, so we'll get the quotient as 2. तो 2 को इधर लिख देना है. Okay, so we reach here 100 minus 2. So the last step is subtraction. तो subtraction कर दो. 100 minus 2 कितना आएगा आंसर आपका? 98. Okay, so this is how you solve this problem. लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम. ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट ले रहे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा ले लिया हमने, बट लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस फर्स्ट. ओके, फर्स्ट इन द एक्सप्रेशन क्या है? 3 plus 6 into ब्रैकेट में 5 plus 4 है, देन डिवाइड बाई 3 minus 7. ओके, आई नो दिस साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको एक एक स्टेप करना है. सो वी हैव प्लस साइन, एडिशन है अपने पास, वी हैव इनटू साइन, वी हैव मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, देन वी हैव अ होल ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट है, तो एक ब्रैकेट है अपने पास. ओके, वी हैव डिवीजन साइन. ओके, देन लास्ट में वी हैव मल्टीप्लिकेशन साइन. तो इधर पे ऑर्डर को छोड़ के बाकी सब में अवेलेबल है. सो एज यू सी आपका प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? ऑपरेशन क्या क्या करोगे? सो पहले करेंगे हम ब्रैकेट. ओके, फिर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन नहीं कर रहे हैं. ऐसा क्यों?
ओके ऐसा इसलिए बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम लेवल में रहता है, वो जो पहले आएगा क्वेश्चन में उसको हम पहले करते हैं. सो एज यू कैन सी इन द मेन क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है, डिवीजन बाद में आ रहा है. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं. ओके, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी डू डिवीजन. ठीक है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले करना पड़ता है. ओके, देन विल डू एडिशन. ओके, एडिशन बिकॉज एडिशन पहले आ रहा है, सब्ट्रैक्शन बाद में आ रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाई वी डू एडिशन फर्स्ट और सब्ट्रैक्शन एकदम लास्ट में. ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट स्टेप इज विल सॉल्व द ब्रैकेट. तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 5 + 4. व्हाट इज 5 + 4? 5 + 4 इज इक्वल टू 9. ठीक है, तो हमने ब्रैकेट हटा दिया और नेक्स्ट स्टेप में 9 लिख दिया. सेकेंड स्टेप इज विल डू मल्टीप्लिकेशन. सो मल्टीप्लिकेशन कहाँ है, 6 × 9 में आपको मल्टीप्लाई करना है. व्हाट इज 6 × 9? इफ यू नो द टेबल ऑफ 6 और टेबल ऑफ 9, वी नो 6 × 9 इज 54. उसको हमने नीचे लिख दिया. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज डिवीजन. ओके, इधर पे आपको डिवीजन करना है. सो 54 डिवाइडेड बाई 3 आप करोगे. ओके, सो 54 डिवाइडेड बाई 3. सो इफ यू डू दिस, सो 3 1s are 3, 24 आया नीचे, तो 3 8s are 24. सो योर क्वेश्चन विल बी 18. तो 18 को आप इधर पे नेक्स्ट स्टेप में डाल दो. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एडिशन. तो अभी आपको इसमें एडिशन करना है. सो 3 + 18 करेंगे. सो 3 + 18 इज 21 एंड द लास्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्शन. सो 21 - 7 आपका फाइनल आंसर आएगा कितना, 14. सो सिंपल है, पहले आपको हमेशा एक्सप्रेशन देखना है. ठीक है, फिर बॉडमास साइड में लिख लो आप, और आप ये डिसाइड करोगे इसमें इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सा ऑपरेशंस हो रहा है. ठीक है, और बॉडमास के रूल के हिसाब से आप एक के बाद एक ऑपरेशन करते जाओ उस पर. Okay, so this is the end of today's lesson. I hope you are able to understand. So here are 6 questions which you will be doing by your own using the BODMAS rule. Okay, so it's a pretty simple rule. आपको BODMAS साइड में लिख लेना है, आइडेंटिफाई हर एक एक्सप्रेशन में कौन कौन सा ऑपरेशंस हो रहा है, देन डू इट वन बाय वन अकॉर्डिंग टू द BODMAS rule. Okay, I hope you like today's lesson. Okay, thank you for listening. I'll see you next time.